Good morning, children. Now we have to study about the calculation, the dimensions of the unit cell. In the previous video, we had discussed all things about the unit cell, the types of unit cell, their crystal lattices, and about their packing in 1 and 2 and 3D structures. Now we have to discuss the different dimension related with the unit cell. So, what are the dimensions? That we can find out the volume, we can find out the density, we can find out the mass also. So, volume is taken according to the edge length A cube. Edge length is edge length, that is different for BCC, for primitive unit cell, and for FCC system according to the radius. We had done the calculation for them in the previous video. Then mass of the unit cell, it will be equals to Z multiplied by small m. Z is number of atoms in a unit cell. Z will be 1 for primitive unit cell, and Z is 2 for BCC system, and Z is 4 for FCC and CCP system. So, number of atoms in a unit cell multiplied by mass of each atom in the unit cell, we can find out the total mass of unit cell, that is equals to Z multiplied small m. Small m is the mass of each atom that is present in the unit cell. Now, mass of an atom we can take by molar mass of that substance upon Avogadro number. This is Avogadro number, and what is the value of Avogadro number? 6.022 10 to the power 23. So density becomes density. What is density? Density is mass upon volume. So if we keep the value of mass and volume, mass is Z by m and small m is m upon Na. So the formula for density becomes Zm, capital M is the molar mass of the crystal, A cube, A is the edge length, Na is the Avogadro number. So for numerical problem, we can use this formula. Z will be fixed for the crystal system, and M for the crystal we can find out. A will be the edge length, that depends on the crystal. Now the numerical related with the density formula. The numerical, this is the example from NCERT book. An element of BCC structure. BCC structure is given us, so Z will be 2 for BCC structure, has edge length 288 picometer. 1 picometer is equals to 10 to the power minus 12 meters. So we have to convert in meters. Then the density is given as centimeter. So we can convert picometer in centimeter also. Density is 7.2 gram per centimeter cubic. How many atoms are present in 208 gram of the element? Means the mass is given us. In this mass, we have to find out that how many elements are present. So number of elements we have to discuss here. Then volume we can find out by this formula, A cube. A is given as 288. We had converted into centimeter. In centimeter we have to convert. So 288 into 10 to the power minus 10 centimeter cube. After that, the answer must be 2.38 into 10 to the power minus 23 centimeter cubic. Then volume of 208 gram of the element. Volume, how can we find out? Mass by density, because density is mass upon volume. So by this we can find out the volume of 208 gram of the element. Mass is given as 208, density is also provided us, then the answer must be 28.88 centimeter cube. Number of unit cell. How can we find out number of unit cell? The mass, this is the volume, and again that the volume of the unit cell. The volume of the 208 gram of the element upon total volume of the unit cell. The answer is this. Now for BCC there are 2 atoms per unit cell. So 2 multiplied by this digit we can get the answer. So the total number of atoms must be 24.16 10 to the power 23 according to the Avogadro number. Next numerical is, in this numerical FCC unit cell is given as, FCC दिया हुआ है हमें, और age length is given as, that is 3.608 10 to the power minus 8 centimeter. It is given in centimeter. So we need not to change, because the density is also given us in centimeter. Density is
calculate the atomic mass. We have to find out the atomic mass. Capital M हमें find out करना है. We have the density formula Zm A cube Na. By this we have to find out that molecular atomic mass. It can be molecular mass also if element is given us. In this question copper is given us. So we have to find out its molecular mass. By changing this formula, we can get this formula D A cube Na upon Z. All the quantities are given as Na is fixed, that is Avogadro number. So D is given us in the numerical 8.92. Na is fixed 6.022 10 to the power 23, and A is given us directly. So this is we can have, and Z is 4. By solving it, we can have the answer in gram per mole. It can be equal to unified mass also or atomic mass unit also. It must be 63.1 for copper. So the children, the next topic is defects or imperfection in solids. So solids, they are having long range and as well as short range order, but they are not perfect in many kinds. So they are having some defects. Defects can be of two types. Point defect and line defect. Point defect means the defects of for a particular atom, for a particular point, for a particular lattice point. So in a crystal, all the atoms, molecule, ions are considered as points. So at a particular atom, molecule or any ion is dislocated from the crystal or other cation or anion enters in the crystal, then this type of defect is called as point defect. Means defect क्या है? डिफेक्ट एक पॉइंट पर होगा और पॉइंट किसको लेते हैं? लेटिस पॉइंट को. और लेटिस पॉइंट कहाँ होते हैं? दे आर देयर इन द क्रिस्टल लेटिस. क्रिस्टल लेटिस में सारे एटम्स, आयन सब कैसे कंसिडर किए जाते हैं? लेटिस पॉइंट के जैसे. तो उस पॉइंट में डिफेक्ट हो जाना मतलब कि वो एटम या तो लूज हो जाना, क्रिस्टल में से हट जाना या नया एटम एंटर कर जाना, तो उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट होगा? पॉइंट डिफेक्ट. और अगर डिफेक्ट जो है पूरी एक रॉ तक चला जाए, पूरा एक लंबी लाइन तक चला जाए, बहुत सारे एटम्स में डिफेक्ट आ जाए, तो वो लाइन डिफेक्ट होता है. तो हमें आगे लेकिन पॉइंट डिफेक्ट ही कंसिडर करना है. तो पॉइंट डिफेक्ट के टाइप से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. फर्स्ट इज स्टाइक्योमेट्रिक, सेकेंड आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट, थर्ड आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. सो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन विच the stoichiometry means the number of cation and anion they are not going to disturb. मतलब cation और anion का जो नंबर है, फॉर्मूला है, it will be fixed. Stoichiometry is not going to disturb. So ये 4 टाइप के हो सकते हैं. They can be vacancy defect, जब वैकेंसी क्रिएट हो जाए, खाली जगह क्रिएट हो जाए, मीन्स क्या होगा? cation anion जो है वो आपके जो क्रिस्टल है उसमें से हट जाए, बाहर चले जाए, तो इसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी. इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? बीच की जगह, जो एटम्स है उनके बीच में जो वॉइड्स है, जो खाली जगह है, वहां पर डिसलोकेशन हो जाए अपने प्लेस से, कोई भी केटायन और एनायन जो है वो हटकर उस जगह पर चला जाए, तो इसकी वजह से डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये दोनों तो है फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स. जो सॉलिड नॉन आयनिक नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड में हो सकता है. जबकि स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट दे आर फॉर आयोनिक सॉलिड्स. सो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? फ्रेंकल डिफेक्ट इज बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. देन स्कॉटकी डिफेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट. नाउ इम्प्योरिटी डिफेक्ट मीन्स वी हैव टू एड वन इम्प्योरिटी, मतलब एक पूरा क्रिस्टल का जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो निकालकर हमें दूसरा उसमें मिक्स कर देना है, तो इस टाइप से इम्प्योरिटी मिक्स हो जाएगी. देन नेक्स्ट इज नॉन स्टाइक्योमेट्री, मतलब इसमें क्या होगा? जो एटम्स का नंबर है cation एनायन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है. और ये 2 टाइप का है, मेटल या तो ज्यादा हो जाए या फिर मेटल कम हो जाए. सो वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आर कॉल्ड एज, इनको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं. थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बिकॉज अगर हम हीट कर रहे हैं किसी क्रिस्टल को तब ये डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं, या फिर इंट्रिंसिक मतलब ये क्रिस्टल के अंदर ही हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं. तो इसके क्या क्या टाइप थे? ये 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट,
वैकेंसी का मतलब है खाली जगह हो जाना। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों जो है वो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए है, नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड्स है, उन सब के लिए है ये। तो इसमें क्या होगा, आप देख सकते हो ये दीज आर शोइंग द नंबर ऑफ एटम्स और पॉइंट लेटिसेस। सो इसमें अगर आप क्रिस्टल को हीट करते हो, यू हीट द क्रिस्टल, तो इसमें वैकेंसी क्रिएट हो जा रही है। इसमें से कोई भी दो जो एटम्स है वो बाहर चले गए हैं, मतलब कम हो गए, नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए हैं, तो ये हीट करने से होगा और इसकी वजह से क्या होगा, इसका मास कम हो गया, वॉल्यूम इज एज इट इज, सो मास कम हो जाने की वजह से डेंसिटी इसकी कम हो जाती है। ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। उसके बाद है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में ये सभी एटम्स को शो कर रहे हैं, बट आप देख सकते हो बाहर से कोई भी दो एटम ऑक्यूपाई हो गए बीच के प्लेसेस पर। इंटरस्टिशियल का मतलब है बीच की जगह, स्फीयर्स के या पॉइंट्स के बीच की जगह। तो बीच की जगह पर क्या हो गया, कोई अदर एटम्स आकर फिक्स हो गए हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो इसमें एक्स्ट्रा एटम्स आ गए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं एट द वॉइड्स, तो इसलिए डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इसकी। तो ये दोनों किसके लिए है, बोथ आर फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स, जिनमें आयंस नहीं बनते हैं। अब फॉर आयनिक सॉलिड व्हाट विल बी देयर, आयनिक सॉलिड में भी दोनों ही टाइप के डिफेक्ट होंगे, बट देयर नेम्स आर डिफरेंट। जैसे कि है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इज नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट ऑल्सो। डिसलोकेशन मतलब अपनी जगह से कोई केटायन, जनरली केटायन ही अपने प्लेस से खिसक जाता है, वेकेंट खाली जगह हो जाती है केटायन, और वो कहां पर आ जाता है, इंटरस्टिशियल प्लेस पर आ जाता है। तो ये आपका हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पर, केटायन अपनी जगह से इंटरस्टिशियल जगह पर आ गया है। तो इससे क्या होगा, कोई भी न तो नया एटम एंटर हुआ है, नया आयन एंटर हुआ है, नहीं कोई बाहर से एटम इसमें एंटर हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी रिमेन सेम, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन है वो सेम रहेंगे। तो दिस विल बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ऑल्सो। इलेक्ट्रिक इसमें ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होंगे। तो ये एक टाइप का डिसलोकेशन डिफेक्ट है, और इसमें दोनों ही टाइप से हो गया है, वैकेंसी भी क्रिएट हुई और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी शो हुआ है। तो ये किस किस में होगा, द एग्जाम्पल्स आर जिंक सल्फाइड, silver bromide, silver iodide, these are having the Frankel defects. So next is Schottky defect. In this defect vacancy defect is there. Vacancy create होगी इसमें। vacancy कैसे create होगी, एक केटायन, यहां से एक केटायन प्लस माइनस, यहां से प्लस माइनस, एक प्लस और एक माइनस आयन जो है वो क्रिस्टल में से शिफ्ट हो गए, बाहर की तरफ निकल गए हैं, इसलिए क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी लूजेस, डेंसिटी कम हो गई। तो एक टाइप से वैकेंसी इसमें क्रिएट हो गई, इसलिए एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट है। एंड द एग्जांपल्स आर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड, इट इज शोइंग फ्रैंकल स्कॉटकी बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट। After stoichiometric defect, the four types, we have to discuss about the impurity defect. So impurity का क्या मतलब है, मतलब कि हम एक बेसिक क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में, अगर सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ आप हीट करते हो तो क्या होगा, NaCl का ये स्ट्रक्चर है, NaCl, बट यहाँ पर जो केटायन है सोडियम, सोडियम के प्लेस पर क्या आ गया है, स्ट्रोंशियम Sr2+, इट इज हैविंग +2 चार्ज। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसमें सोडियम आयन नहीं है, तो वैकेंसी भी क्रिएट हो गई यहाँ पर एक, और इसमें इम्प्योरिटी भी मिक्स हो गई है स्ट्रोंशियम की। तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अदर एग्जांपल इसका है कैडमियम क्लोराइड और AgCl के साथ कैडमियम क्लोराइड को अगर हीट करते हैं तो इसी टाइप का डिफेक्ट शो हो जाता है उस क्रिस्टल में। सो दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मेन डिफेक्ट इज, कौन सा है, दिस इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, जो स्टाइकियोमेट्री है दैट विल डिस्टर्ब ऑफ द क्रिस्टल। सो इसमें दो टाइप का डिफेक्ट हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग हियर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाना, मेटल का ज्यादा हो जाना। तो इसमें भी हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब आप सोडियम वेपर्स में हीट करते हो तो क्या होगा,
सोडियम इज हैविंग प्लस चार्ज ऑन इट। सोडियम का प्लस चार्ज और उसका इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा और Cl माइनस आयन जो है क्रिस्टल से वो बाहर आकर Na को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है क्रिस्टल के अंदर और उस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ गया है। इलेक्ट्रॉन जो है दैट इम्पार्ट्स कलर इन द विजिबल रेडिएशन। जब ये लाइट को, किसी विजिबल लाइट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा और जब आप उसकी लाइट कम होगी तब क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। तो इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। देखिए इसमें एग्जांपल है NaCl का, NaCl प्लस माइनस है। तो अब इसको सोडियम वेपर के साथ हीट कर रहे हो आप, NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर के साथ हीट कर रहे हो तो सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ और यहां से Cl माइनस बाहर आया, NaCl बना और यहाँ जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था वो यहीं रह गया है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है दैट इज नॉट वेकेंट, उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर शो होगा उस क्रिस्टल में। तो ये क्या है, NaCl can show yellow color in visible radiation when it absorbs the radiation and LiCl lithium chloride also have pink color और KCl जो है उसको भी पोटेशियम वेपर के साथ आप हीट करते हो तो इट गिव्स वायलेट कलर टू यू। इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज F सेंटर। F मीन्स कलर, F मीन्स फार बेंजिटर सेंटर दैट इज हैविंग कलर इन इट। सो इन सब क्रिस्टल्स का कलर इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से हुआ है। तो नॉर्मल क्रिस्टल था NaCl बट उसमें आपने ज्यादा कैटायन डाल दिए, मेटल ज्यादा डाल दी तो कलर